Hello guys, I Ashi from Elio Update. Now I'm here with my next video. In this video, we will do the most important and common MCQs that are asked in your entrance examination, become entrance examination, top 30 MCQs. Okay. If you like the video, please click on the thumb button, and if you are new to our channel, please subscribe our channel for all the latest new video notification. And for PDF, please visit our website. Links are given in the description box. Okay. So let's start the video. First MCQ. Management means forecasting, planning, organizing, directing and coordinating and controlling. Who said this? Basically management का मतलब क्या होता है? Management means a forecast करना, plan करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको डायरेक्ट करना आपकी कंपनी को, उसमें कोऑर्डिनेशन लाना, अपने एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना और कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना. That is called as a management. Who said this? This statement was given by the Henry Fayol. Okay, so answer will be Henry Fayol. Then there is the next question is, which of the following is not a part of the management? Basically from the among the following is not part of the management. Okay, so planning is a part of a management. Planning जो है वो part है management का आपका. Staffing भी आपका पार्ट है मैनेजमेंट का. बजटिंग भी बेसिकली आपका क्या होता है, पार्ट होता है मैनेजमेंट का, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, सो आंसर विल बी कम्युनिकेशन. Then there is the next question. Father of the modern management is called as a, basically who is the father of the modern management? Modern management father is a Kunz and O'Neill. Okay, O'Donnell is the father of the modern management. Then there is the next question is, a management is concerned with. Basically आपका जो management है वो किससे concerned? Basically management आपका जो है वो executive function से क्या है, concerned है. Okay, so answer will be executive function. Management is concerned with the executive function. Okay. Then there is a next question. Next question is, a democratic leader means. Basically आपका democratic leader means क्या होता है? Basically democratic leader means डेमोक्रेटिक लीडर्स क्या करते हैं आपके कि अवॉइड करते हैं, कैन अवॉइड द एक्सेस ऑफ द अथॉरिटी, एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी को क्या करते हैं, बेसिकली अवॉइड करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेटिक लीडर. ओके, सो आंसर विल बी ए, कैन अवॉइड द एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी. Then there is the next question. Next question is, the fundamental component of the management does not include. Basically जो आपका fundamental जो component है आपका management का वो क्या नहीं include करता है. Okay, fundamental component of the management does not include motivation. Okay, आपका motivation को नहीं include करता है. Basically जो आपका management है उसमें बेसिकली आपको क्या होता है, प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टिंग इन्वॉल्व होती है, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है और आपका कंट्रोलिंग इन्वॉल्व होता है, कंट्रोलिंग. ओके, एंड बजटिंग भी आपका इन्वॉल्व होता है आपके मैनेजमेंट में, एक्सेप्ट मोटिवेशन. ओके, सो मोटिवेशन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द मैनेजमेंट. ओके. Then there is a next question. Next question is, according to the Fayol, function of the management are. Basically management की क्या क्या function होते हैं. Okay, planning होता है, organizing is a function of a management, direction is also a function of the management, and coordination and control is also the function of the management. Okay, so answer will be the all of these. Okay. Then there is a next question is, a management is. Basically आपका जो management क्या है, management basically आपका art है. ओके, आपका साइंस भी है मैनेजमेंट और आपका कोडी प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट. ओके, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस. आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या है, आर्ट भी है, साइंस भी एंड प्रोफेशन भी है. ओके. Then there is the next 10th question. All marginal function are settled by the manager with the tool of. Basically जितने भी आपके marginal functions होते हैं आपके कंपनी में वो मैनेजर
किस टूल के थ्रू क्या करता है, वो सेटल डाउन करता है विथ द डिसीजन मेकिंग टूल्स के थ्रू क्या करता है, वो सारे जितने भी आपके मार्जिनल फंक्शंस होते हैं उसको सेटल डाउन करता है. ओके, सो आंसर विल बी बी, डिसीजन मेकिंग. Then there is the next question. Who is the founder of administrative management? Administrative management के कौन founder है? Henry Fayol is the founder of administrative management. So answer will be Henry Fayol. Then there is the next question. Is a span of a management refers? Basically आपका span of a management refers क्या करता है, इसमें क्या होता है, number of the subordinate अंडर सुपीरियर. जितने भी आपके सुपीरियर होते हैं उनके अंदर जितने भी आपके सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे होते हैं, ओके, नंबर ऑफ अ सबॉर्डिनेट उनके जितने भी होते हैं उसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, सो आंसर विल बी नंबर ऑफ अ सबॉर्डिनेट अंडर सुपीरियर. Then there is a next question. Next question is a share warranty can be issued by the company. Basically आपके जो भी शेयर वारंटी जो होते हैं वो इशू करते हैं कंपनी कब, जब क्या होते हैं, जब आपके शेयर्स क्या होते हैं, फुल्ली पेड अप होते हैं. ओके, व्हेन द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, इन दैट केस आपके जो भी शेयर वारंट होते हैं कैन बी इशूड बाय द कंपनी. ओके, सो आंसर विल बी शेयर आर फुल्ली पेड. देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन इशू ऑफ अ शेयर्स टू द प्रमोटर, आप जब आप प्रमोटर्स को अपने शेयर्स को इशू करता है कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन द कैश. ओके, कंसिडरेशन के फॉर्म में अदर देन द कैश. ओके, सो देन द अमाउंट इज़ टू बी डेबिटेड इन. तो उसमें उस केस में क्या होता है, जो भी अमाउंट होता है वो किस में डेबिटेड होता है, वो बेसिकली आपका गुडविल अकाउंट में क्या होता है, डेबिटेड होता है. ओके, सो आंसर विल बी गुडविल अकाउंट. Then there is the next question is in case of a issue of a share at a discount. जब आप अपने शेयर्स को 3 केसेस में इशू कर सकते हैं शेयर्स को, एक प्रीमियम पे, पार पे और डिस्काउंट पे. ओके, जब आप अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे होते हैं तो द रेट ऑफ अ डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन. तो उस केस में जो आपका डिस्काउंट रेट होता है वो किससे ज़्यादा नहीं होगा, 10% से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो आंसर विल बी 10%. Then there is the next question is a balance of the share forfeited account is shown in the balance sheet under the heads of. Basically जो आपके forfeited shares होते हैं उसका जो भी amount होता है वो किस आपके balance sheet में किस heading में show होता है, basically वो आपके reserve and surplus के heading में क्या होता है, show होता है. जितने भी आपके share forfeited account के जो भी बैलेंस आता है वो आपके सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में क्या होता है, शो होता है. ओके, सो आंसर विल बी रिजर्व एंड सरप्लस. देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द कन्वर्टेबल शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू. जो भी आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं किस में, आपके जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपके इक्विटी शेयर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं. ओके, सो आंसर विल बी इक्विटी शेयर. Then there is the next question. A public limited company can issue. जो आपकी public limited company है वो क्या issue कर सकती है, वो redeemable debentures को क्या कर सकती है, issue कर सकती है. ओके, irredeemable equity shares नहीं issue कर, redeemable equity shares नहीं issue कर सकती है, secure equity shares भी नहीं. ओके, सो आपकी जो public limited company होती है वो क्या कर सकती है, redeemable debentures को क्या कर सकती है, issue कर सकती है. ओके, आंसर will be redeemable debentures. Then there is a sweat equity shares can be issued by. Basically आपके जो sweat equity shares होते हैं वो issue होते हैं किसके थ्रू issue हो सकते हैं, किसके बाय issue हो सकते हैं. बेसिकली आपका जब स्पेशल रेजोल्यूशन आपकी कंपनी में जब पास हो जाता है तो उस पर क्या होता है, आप आपके इक्विटी शेयर्स को क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं. ओके, बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ओके, सो आंसर विल बी ए, स्पेशल रेजोल्यूशन. देन देयर इज अ नेक्स्ट 20th क्वेश्चन. डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ अ शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. बेसिकली जो भी आपको डिस्काउंट अलाउड होता है शेयर्स पे, इशू ऑफ अ शेयर्स के टाइम पे, तो वो किसका एग्जाम्पल है, बेसिकली वो आपका एग्जाम्पल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का. ओके, सो आंसर विल बी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज अ डिबेंचर होल्डर आर. बेसिकली आपके जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कौन होते हैं कंपनी के, बेसिकली वो आपके क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ओके, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी.
देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द कंपनी इज कन्वेड। बेसिकली जो आपके जितने भी आपकी कंपनी में जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है वो कब कन्वे होती है, वो बेसिकली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, एक बार होती है इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी के। ओके, देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिबेंचर इंडिकेट्स। बेसिकली आपको जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या इंडिकेट्स करते हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। बेसिकली आपके जो डिबेंचर्स जितने भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है फॉर दी कंपनी के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के होते हैं। ओके, डिबेंचर्स, सो आंसर विल बी डी, डिबेंचर्स आर द डिबेंचर इंडिकेट्स अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू दी। बेसिकली जो भी आपकी गारंटी प्रॉफिट होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, बेसिकली वो आपके इनकमिंग पार्टनर्स को क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ओके, जितने भी आपके गारंटीड प्रॉफिट होते हैं। ओके, सो आंसर विल बी इनकमिंग पार्टनर। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पार्टनरशिप अंडर अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैथड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन। बेसिकली आपका जो भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैथड होता है उसमें कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, उसमें आपका कैपिटल अकाउंट भी होता है ओपन और करेंट अकाउंट भी ओपन होता है पार्टनर्स का। ओके, सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। ओके, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ओपन होता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी ओपन होता है इन कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मैथड में। ओके, then there is the next question, the amount of a goodwill brought in by a new partner is transferred to the old partner in। बेसिकली जो आपका न्यू पार्टनर जब एंटर हो रहा होता है पार्टनरशिप में तो वो जो भी गुडविल लाता है वो आपके ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र होते हैं किस रेशियो में, बेसिकली वो ट्रांसफ़र हो वो आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं टू दी ओल्ड पार्टनर्स को। ओके, सो आंसर विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is a profit and the loss should be shared in the partnership। बेसिकली जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं शेयर्स के आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं कंपनी के शेयर इन दी पार्टनरशिप में शेयर होते हैं किस रेशियो में शेयर होते हैं। बेसिकली जो भी आपका कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है वो किस रेशियो में जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अमंग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बेसिकली आपका डिटरमाइंड होता है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट। जो भी आपके जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा, जब आपकी पार्टनरशिप फॉर्म स्टैब्लिश हुई होगी उस टाइप में आपका एक पार्टनरशिप डीड बना होगा, उसमें क्या होता है लिखा होता है कि किस रेशियो में हर एक पार्टनर्स को रेशियो में किस रेशियो में हर पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना, लॉसेस शेयर करना। ओके, सो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन दी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं प्रॉफिट और लॉस शेयर होता है। अगर नहीं मेंशन होता है तो फिर इक्वली होता है अमंग द पार्टनर्स के बीच में। ओके, देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। बेसिकली आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके, नॉमिनल अकाउंट मतलब आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इसमें शो होता है। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Then there is a new ratio minus old ratio is equals to the sacrificing ratio। sacrificing ratio का फॉर्मूला ही होता है आपके जितने भी आपके न्यू शेयर्स न्यू रेशियो आया होगा उसमें से आप क्या करते हैं माइनस कर देते हैं आपके ओल्ड रेशियो को। ओके, सो आंसर विल बी sacrificing ratio। then there is a last question, in the case of a winding up of the firm, अगर वाइंडिंग अप हो रहा है फर्म का विथ वॉट नेसेसरीली एंड, क्या बेसिकली जब आपको पार्टनरशिप आपकी जो फर्म है उसका वाइंडिंग अप हो रहा है वो बंद हो रही है वो एग्जिस्टेंस में नहीं रह रही है अब, तो उस केस में आपका क्या होता है वॉट मतलब उस केस में क्या बंद होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड होती है नहीं, कंपनी एंड होती है नहीं, पार्टनरशिप एंड होती है। ओके, आपका जब वाइंडिंग अप होती है तो उस केस में वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म जब हो रहा होता है तो उस केस में क्या होता है पार्टनरशिप क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ओके, सो आंसर विल बी पार्टनरशिप। ओके, thank you guys, I hope you like the video. If you like the video please click on the thumb button, and if you are new to our channel please subscribe our channel, and for ebooks and notes please visit our website. Thank you.